الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. حضرات، کل کی گفتگو میں وہ چیزیں بیان کی گئی تھی جن کے بغیر اگر نماز ادا کی گئی تو ان کے بغیر نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے. اور وہ ہے کیا چیزیں جن کو نماز کے واجبات کہا جاتا ہے. یعنی اگر نماز کے اندر بھول کر اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور نماز کے اندر ہی وہ واجب یاد آ گیا تو اس کی بھرپائی سجدہ سہو سے کی جا سکتی ہے. اور اگر نماز کے بعد وہ یاد آیا تو ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اور وہ کل کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 14 چیزیں ہیں. سب سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ لفظ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا واجب ہے. اور دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ جس کو الحمد شریف کہا جاتا ہے اس کا پڑھنا بھی واجب ہے. اب الحمد شریف کے ساتھ میں ہم کوئی نہ کوئی سورت ملاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو سورت ملانا، سورت پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن الحمد شریف کے ساتھ میں سورت ملانا یہ واجب ہے. الحمد پڑھنا یہ واجب ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی سورت پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 3. اور چوتھے نمبر پر ہے الحمد شریف کا سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی بعد میں پڑھتا ہے تو وہ واجب کو ترک کرنے والا ہوتا ہے. 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا، ایک ہی بار پڑھنا یہ بھی واجب. اگر کوئی چاہے کہ ہم چند مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو وہ بھی واجب کو ترک کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو سب سے اہم مسئلہ بیان کیا گیا تھا جس میں اکثر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آخر کن رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملائیں اور کن کے ساتھ میں نہ ملائیں. تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا اور باقی سنت اور نفل کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا یہ کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ 5. اب آخر میں کیا 6 نمبر پر کیا آتا جس کو کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا، اور وہ کیا ہے؟ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا جس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ. عربی میں قومہ. قومہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا. یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے اندر واجب ہے. اگر کوئی انسان سیدھا نہ کھڑا ہوا اور پہلے ہی اس سے پہلے سجدے میں چلا گیا تو اس کا بھی واجب کیا ہو جائے گا؟ ترک ہو جائے گا. اور ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہوگا. اگر کوئی دوبارہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. 7ویں نمبر پر جلسہ. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا. یہ بھی کافی لوگوں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں کہ ابھی ایک سجدے سے سیدھے اٹھ کے بیٹھ نہیں پایا اور دوسرے سجدے میں جانے کی وہ تیاری بنانے لگتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جلسہ. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان. جلسے میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ اسی لیے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں بیٹھتے ہیں، سیدھے بیٹھتے ہیں. اگر کوئی جھک کے بیٹھے اور اپنے آپ کو متوجہ نہ کرے تو حقیقت میں وہ جلسے میں بیٹھنے والا نہیں کہلائے گا. سمجھ گیا؟ اگر اس کا ذہن ہے حاضر یہاں پر نہیں ہے، جلسے میں بیٹھا اور ذہن کہیں حاضر ہے تو حقیقت معنوں میں وہ جلسہ سننے والوں میں سے شمار نہیں ہوگا. دل و دماغ اور اس کی فکر وہیں حاضر ہو تب جا کے وہ جلسے میں شمار ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہو گئی نا. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ تشہد میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا. اچھا، قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ بہت سارے لوگ بیچارے بھول جاتے ہیں. دیکھو 2 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ نہیں ہوتا ہے اور 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟
2 रकात वाली में अगर आप बैठे तो आप ये ना समझे कि ये कायदे उला है, समझ गए ना, वही कायदे अखीरा, इसलिए कि उसमें पहला कायदा होता ही नहीं है। होता किसमें है? जिसमें 4 रकात होती है, उसमें 2 मरतबा बैठना पड़ता है। तो जिसमें 2 मरतबा बैठना पड़े उसमें पहले वाले को क्या बोलोगे? कायदे उला, और आखिर वाले को कायदे अखीरा। तो जब पहले दूसरी पे जो बैठते हैं उसका बैठना क्या है? वाजिब है। और जो आखिर में बैठते हैं, अगर 4 रकात वाली नमाज है तो चौथी पे बैठना क्या है? ये फर्ज है। और 2 रकात वाली है तो 2 पर बैठना ये फर्ज है। ठीक है, 4 वाली में जो पहले में बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? कायदे उला, और ये करना क्या है? वाजिब है। उसके बाद में कौन सा वाजिब है? तशहुद का पढ़ना, जिसको हम क्या कहते हैं? अत्तहियातुल्लाह, इसका पढ़ना भी वाजिब है, समझ गए। और वित्र में क्या पढ़ा जाता है? दुआए कुनूत, इस दुआए कुनूत का पढ़ना भी वाजिब है। अच्छा, और कल भी मैंने बयान किया था कि सजदे के लिए जाना, रुकू के लिए जाना, इसको भी क्या बोलते हैं? तकबीर। और इन तकबीरों का नाम क्या है? तकबीर इंतकाल। अब कोई कहेगा नमाज में भी इंतकाल हो जाता है क्या? तो इंतकाल को इंतकाल इसीलिए कहते हैं कि इंसान इस ज़ाहिरी दुनिया से हमेशगी की दुनिया की तरफ जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कि उसका इंतकाल हो गया है। और यही हाल नमाज में होता है कि अगर कोई इंसान रुकू में है तो रुकू को खत्म करके अब वो किसकी तरफ जा रहा है? सजदे की तरफ जा रहा है। और अगर सजदे में है तो अब किसकी तरफ जा रहा है? कयाम की तरफ जा। ये एक हालत से दूसरी हालत की तरफ वो बदलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तकबीर इंतकाल। और जिस इंसान का इंतकाल हो जाता है उसको भी इसी वजह से बोलते हैं कि वो हयात वाली दुनिया से अब जिंदगी में जो यहाँ पर हाजिर था वो हमेशगी वाली दुनिया में बदल रहा है, इसीलिए उसको भी इंतकाल का। इंतकाल का माना क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह की तरफ क्या है? मुंतकिल हो जाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है ना। दुआए कुनूत पढ़ना क्या है? वाजिब। अब मैंने इसलिए ये बयान किया था कि जो सजदों में या रुकू के लिए जो तकबीरें होती हैं इनका कहना क्या है? वाजिब नहीं है, बल्कि क्या है? सुन्नत है। लेकिन जो दुआए कुनूत के लिए तकबीर कही जाती है उस तकबीर का कहना क्या है? वाजिब है, समझ गए ना। उस तकबीर का कहना वाजिब है। अच्छा, कुछ नमाजें ऐसी हैं जिसमें जहर से यानी आवाज से क़िरात होती है, और किसी नमाज में क्या है? सिर्री यानी आहिस्ता क़िरात की जाती है। तो जोहर और असर में आहिस्ता क़िरात करना, मगरिब, इशा और फजर में जहर यानी आवाज से क़िरात करना, ये भी क्या है? वाजिब है। अगर कोई इसको बदलता है, मगरिब में आहिस्ता करता है और जोहर में बुलंद आवाज से करता है, तब भी वो वाजिब को तर्क करने वाला होगा, समझ गए ना। आखिर में क्या बचा? ईदैन में जो 6 तकबीरें बोली जाती हैं और नमाजों से जो जायद हुआ करती हैं उनका अपना भी क्या है? ये भी वाजिब है। अच्छा, आखिर में कल जो एक उठ गया था वो ये था कि आखिर में जो हम सलाम फेरते हैं तो लफ्ज़ सलाम जो खास किया गया है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इसी अस्सलाम के साथ ही नमाज का ख़त्म करना ये भी क्या है? वाजिब है। अगर कोई नमाज से फारिग होने के इरादे से अगर कोई दूसरा लफ्ज़ भी बोलता है तब भी वो नमाज से बाहर हो जाएगा, लेकिन वो वाजिब को तर्क करने वाला होगा। अस्सलाम के जरिए से ही नमाज से बाहर आना ये भी क्या है? वाजिब है। ये तो कुल वो बयान हुआ जिसको हमने कल भी बयान कर दिया था। अच्छा, नमाज की ही बात चल रही है तो एक नमाज जनाजा होती है जिसको 2 मिनट में आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग उसमें भी फर्क करते हैं, उसमें भी कुछ फर्ज और कुछ सुन्नतें हैं, समझ गए। जैसे 5 वक्ता नमाज में कुछ फर्ज और कुछ सुन्नतें, कुछ वाजिबात हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से पाए जाते हैं। सबसे पहली कमी तो इंसान ये करता है कि जब नमाज जनाजा में खड़ा होता है और तकबीर कहता है तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा लेते हैं, समझ गए ना। और इसको फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा इसको मकरूह लिखते हैं कि आसमान की तरफ सर का उठाना ये क्या है? मकरूह है। तो आप ख्याल रखें कि तकबीर चाहे नमाज की हो, चाहे ईद की हो, चाहे जनाजे की हो, किसी भी सूरत में अपने चेहरे को आसमान की तरफ ना उठाएं, ये क्या है? मकरूह और गलत तरीका है, समझ गए ना। और दूसरी बात यह है कि नमाज के अंदर, नमाज जनाजा के अंदर फर्ज कितने हैं? तो सबसे कम अगर किसी नमाज में फर्ज है तो वो क्या है? नमाज जनाजा में ही फर्ज है। और वो कुल कितने हैं? 2 है। सबसे पहले क्या है? खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना, ये क्या है? फर्ज है, समझ गए ना। जैसे फर्ज नमाज के लिए कयाम जरूरी है, इसी तरीके से नमाज जनाजा के लिए भी खड़ा होना ये जरूरी है। और दूसरे नंबर पर चारों तकबीरों का कहना ये भी फर्ज है। सिर्फ यही 2 फर्ज हैं, आप याद रखें, ये 2 मसले याद रखें। जब आप नमाज के लिए खड़े हों और तकबीर कही जाए तो अपने चेहरे को आसमान की तरफ
नहीं उठाना है। और ये याद रखना है नमाज जनाजा के अंदर फर्ज कितने हैं, वो 2 है। सबसे पहला जो फर्ज नमाज के लिए कयाम यानी खड़ा होना जरूरी है, इसी तरीके से नमाज जनाजा के लिए भी खड़ा होना ये भी जरूरी है, समझ गए। और दूसरे नंबर पर चारों तकबीरों का कहना ये भी फर्ज है। अब कौन सी तकबीर में क्या पढ़ा जाएगा और कौन कौन सी दुआ बालिग के लिए है और कौन सी नाबालिग बच्चे के लिए और कौन सी बच्ची के लिए, इंशाल्लाह वो तो हमारे बयान करने से, अगर हम 40 दिन बयान करने लगेंगे तब भी आप नहीं याद कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये कोशिश करना पड़ेगी, जो लोग पढ़े हैं वो लिखकर या देखकर याद करें, और अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग हम कर देंगे, अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड करें और एक एक 2-2 लफ्ज करके धीरे धीरे वो दुआएं आप याद करते जाएं, ठीक है ना। याद रहेगी ना। 2 फर्ज किसमें है, नमाज जनाजा में, एक खड़े होकर नमाज पढ़ना और चारों तकबीरों का कहना, ठीक है। नमाज के अंदर जो वाजिबात है, फराइज है, सुन्नत तरीके से नमाज पढ़ने की आदत डालें, इंशाल्लाह आपको फराइज भी याद रहेंगे, वाजिबात भी याद रहेंगे। नमाज का बयान चल रहा था इसलिए मैंने जनाजे का भी बयान कर दिया, और अभी इसकी भी सुन्नतें और किस तरीके से हमें नमाज पढ़ना है बहुत सारे हमने ये भी बयान किया था कि नमाज के अंदर उल्टा कुरान पढ़ना ये क्या है, हराम है, समझ गए ना। अगर किसी को परेशानी होती है कि हमें इतनी सूरतें याद हैं तो हमें किस वक्त में कौन सी पढ़ना है, तो मैंने कहा था मुझे बयान कर दे, मैं बता दूंगा कब आपको कौन सी पढ़ना है। पहले ये पढ़ें, उसके बाद में पढ़ें, और उसके बाद में ये पढ़ें, समझ गए ना। अब अगर किसी को कोई परेशानी मसला पूछना है तो वो बयान करने के लिए बता दें है, निबिल पढ़ें मतलब क्या पढ़ें, करने का मतलब क्या करना है। कल के लिए तो देखो बेहतर तो तरीका यही है, हदीस पाक में ये है कि जिसके जिम्मे करम पर अगर कज़ा नमाज वाजिब है, अभी बाकी है, तो समझ गए वो चाहे कितनी भी नफली इबादत करे, नफल उस वक्त तक कबूल नहीं होते जब तक उसकी कज़ा मुकम्मल नहीं होती है, समझ गए। अब बहुत सारे लोग ये समझ पर्चा आ जाता है हमारी नजरों के सामने, समझ गए, और पर्चे को इतना खास कर लेते हैं, ये समझते हैं पूरी रात में जिसने ये पर्चा पढ़ लिया उसने शब बारात का हक अदा कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं है, समझ गए। आप जितना चाहे नफल पढ़ें ये बेहतर है, लेकिन बेचारे मना इसलिए नहीं किया जाता है कि वो शब बारात में आते हैं बहुत तैयारी करके, और अगर उनसे ये कह दिया जाए कि आप कज़ा पढ़ें तो वो सोचते हैं 40 साल की कज़ा बाकी, हम एक रात में कैसे अदा कर पाए, तो बेचारे ना नफल पढ़ेंगे और ना ही वो कज़ा पढ़ेंगे, इसलिए कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर कोई अक्लमंद होशियार है तो उसे बेहतर तरीका यही है कि कुछ नवाफिल भी पढ़ ले ताकि शब बारात के उसे मखसूस फजाइल जो है वो भी हासिल हो जाए, और बेहतर कोशिश यही करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अपनी क़ज़ाए उम्री को मुकम्मल कर ले, समझ गए। कल इंशाअल्लाह इसको मैं बयान दूंगा, हाँ ठीक है।